اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حماس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور فتح یاب کرے گا۔ خاص طور پہ اگر بات کریں اکانومی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، کیا کہیں گے اس ٹائم پہ 30 بلین کے فوریکس ریزرو جو اسرائیل نے سیل کیے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ ہیلو دوستو، ہمارے چینل پہ آپ کا سواگت ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا اسرائیل اور غزہ پٹی کے بیچ یدھ چل رہا ہے۔ غزہ پٹی میں ایک سنگٹھن ہے حماس، یہ ایک آتنکوادی سنگٹھن ہے، پھر کئی دیشوں نے اس سنگٹھن کو آتنکوادی سنگٹھن ہی مانا ہے، اور اس آتنکوادی سنگٹھن حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا اور اسرائیل کے کئی بے گناہ انسانوں کو مارا، یہاں تک کہ عورتوں کو بھی نہیں بخشا۔ وہاں کی عورتوں کو انہوں نے کڈنیپ کیا، ان کا ریپ کیا اور پھر ان کو مار دیا۔ اور جب اسرائیل نے غزہ پٹی پر حملہ کیا تو وہاں بھی کئی بچوں، عورتوں اور بے گناہوں کی جان گئی، جس کو انہوں نے غزہ پٹی حماس سنگٹھن ہے، انہوں نے ان کی ویڈیوز بنا کر کے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کر دیا اور سوچ رہے ہیں کہ بھائی ان کا گناہ چھپ جائے گا۔ ایسا نہیں ہے، گناہ تو گناہ ہے، وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اب جو غزہ پٹی میں رہنے والے لوگ زیادہ تر مسلم ہیں، وہاں پر 99% مسلم لوگ رہتے ہیں اور 1% کرسچن۔ تو پہلے میں آپ کو کچھ ویڈیو دکھاتا ہوں پاکستان کی، کیونکہ پاکستان بھی بہت بوکھلایا ہوا ہے غزہ پٹی پہ جو حملہ ہوا ہے، وہ بہت اس کی نندا کر رہے ہیں۔ وہاں بھی لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں جو فلسطین کا ساتھ دے رہے ہیں، کیونکہ سب مسلم ہیں اور مسلمان تو مسلمان کے لیے بولے گا ہی۔ تو پہلے میں آپ کو ویڈیو دکھاتا ہوں، آپ ویڈیو دیکھیں۔ اور اللہ تعالیٰ اسرائیل کا بیڑا غرق کرے گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ حماس کو اپنے غیب کے خزانوں سے ضرور فتح یاب کرے گا۔ ٹھیک ہے، ادھر دو چیزیں ہیں۔ آپ نے بولا کہ بھائی حماس کو فتح یاب کرے گا، اسرائیل کا بیڑا غرق کرے گا۔ صرف دعا کر دینے سے یا اس طریقے سے کرنے سے تو جنگیں نہیں لڑی جاتی، بالکل جنگیں لڑی جاتی ہیں ٹیکنالوجی سے۔ آج کے دور پہ خاص طور پہ اگر بات کریں اکانومی سے جنگیں لڑی جاتی ہیں، کیا اس ٹائم پہ 30 بلین کے فوریکس ریزرو جو اسرائیل نے سیل کیے ہیں اور انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بھائی ہم لمبی جنگ کے لیے تیار ہیں۔ اور یہ کیا فلسطین کی بات کریں یا حماس کی بات کریں، اتنی اکانومی ان کے پاس ہے کہ وہ اس طرح سے اسرائیل کا مقابلہ کر سکیں، یا پھر جیسے سپر پاور امریکہ ساتھ دے رہی ہے مقابلہ کر سکیں؟ دیکھیں غزوہ بدر کی آپ ہسٹری لے لیں، 313 صحابہ کرام تھے۔ آپ نے مجھے پوچھا ہے کہ آپ ٹیکنیکوں کو مانتے ہیں، میرا اپنا دماغ ہے، میں ٹیکنیکوں کو نہیں مانتا۔ جب تک مسلمانوں کے اندر جتنی مرضی ٹیکنیک ہو جائے، اب تھوڑی ٹیکنیک ہے پاکستان کے پاس، ہمارا پورا ملک خاموش ہے، کہاں گئی ٹیکنیک؟ جب تک ایمان کا جذبہ نہیں آئے گا بھائی آپ جنگ نہیں جیت سکتے۔ وہ 313 تھے صحابہ کرام جنہوں نے کفر کا بیڑا غرق کر دیا تھا۔ انشاءاللہ اس دفعہ پھر تاریخ اپنا آپ دہرائے گی اللہ کے حکم سے۔ یہ جو مٹھی بھر مسلمان ہیں، اللہ کی مہربانی سے اب اللہ ٹیکنالوجی بھی دے دے گا۔ جب جذبہ سچا ہو، لگن ہو، تو اللہ کی ذات اپنی غیب سے مدد فرماتی ہے۔ آپ نے ایک چیز یہ بھی کہی کہ اگر مسلمان یونائٹڈ ہو جائیں، اکٹھے ہو جائیں، تو اس کا مطلب ابھی دنیا کے مسلمان اکٹھے نہیں نظر آ رہے۔ ابھی تو اکٹھے نہیں ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اکٹھے ہو جائیں گے، مجھے اللہ سے بڑی امید ہے۔ ہوں گے کون سا ایسا ہے مطلب اس ٹائم پہ اگر اکٹھے نہیں ہیں، اور ایون اکٹھا ہونا ایک دوسری طرف ہے، آپس میں لڑ رہے ہیں اس ٹائم۔ اگر ہم بات کریں پاکستان کی، افغانستان کے ساتھ ایشو چل رہے ہیں، اور ایران کے مطلب دوسرے شیعہ سنی کنفلکٹ یار میری بات سنیں، افغانستان کے اندر کتنے افغانی تھے؟ انہوں نے کیسے امریکہ کو شکست دی ہے میرے بھائی؟ کیا ان کے پاس امریکہ سے زیادہ ٹیکنالوجی تھی؟ بتاؤ مجھے۔ روس کا کیسے انہوں نے بیڑا غرق کیا؟ کیا ان کے پاس رشیا سے زیادہ ٹیکنالوجی تھی؟ اللہ کی تو روس کے اگینسٹ امریکہ نے دیا میرے بھائی، اب بھی کوئی نہ کوئی دے رہا ہے اسلحہ اندر کھاتے اور دے دے گا اللہ کی مہربانی سے۔ یہ میرا انٹرویو تم یاد رکھنا، فتح اللہ کی مہربانی سے مسلمانوں کے حق میں آئے گی، اور فلسطین کے اندر انشاءاللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا پرچم بلند ہوگا۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ بھی لوگ ریلیاں نکال رہے ہیں، بڑی تعداد میں لوگ روڈ پہ آ رہے ہیں، سڑکوں پہ آ رہے ہیں، اور جمعے کی بھی کال دی گئی ہے کہ بھائی پورے پاکستان کے ہر ایک شہر میں ریلی نکالی جائے گی۔ مجھے بتائیں، پبلک اپنے طور پہ آپ اپنے جذبات رکھتے ہیں، میں آپ سے اختلاف بھی کر سکتا ہوں، آپ سے جو ان سے آپ کی اوپینین سے ایگری بھی کر سکتا ہوں، لیکن
स्टेटमेंट तो मानी जाती है गवर्नमेंट की, जो बात है जो पॉलिसी है वो तो गवर्नमेंट की मानी जाती है। गवर्नमेंट की पॉलिसी आपको क्या नजर आ रही है सिचुएशन में? एक साइड पे ये भी खबर आ रही है मीडिया के मुताबिक, ये कहा जा रहा है कि गजा पे दोबारा कंट्रोल हो चुका है इसराइल का, और इसराइल वाले ये कह रहे हैं कि भाई अब ये जिस तरीके से हमास ने स्टार्ट किया है बड़ी मुश्किल में फंसेंगे, बड़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। क्या समझते हैं आप, हमारी गवर्नमेंट का क्या लाहे अमल है, क्या पॉलिसी है इसको लेके? हमारी गवर्नमेंट की सिर्फ एक ही पॉलिसी है कि गरीब आवाम को लूटना कैसे है, ठीक है, और इनके पास कोई पॉलिसी नहीं है। इनको अपने अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है कि हमने पैसे कैसे इकट्ठे करने हैं, खाना कैसे, आवाम का बेड़ा गर्क कैसे करना है। और इंशाअल्लाह और रहमान अल्लाह की मेहरबानी से हक वाज़िया होगा। अल्लाह ताला पाकिस्तान ना सही, अल्लाह ताला इंशाअल्लाह तुर्की में भी मुसलमान है, पूरी दुनिया में मुसलमान है। पता क्या स्टेटमेंट दिया आपने, तुर्की की बात की है, तुर्की वालों ने ये नहीं कहा कि हम फलस्तीन के साथ खड़े हैं या इसराइल के साथ खड़े हैं, उन्होंने बोला कि दोनों कंट्रीज या दोनों पार्टीज आपस में बैठ के जो उनसे मामला को हल कर ले ये बेहतर है, यानी वो समझ ले बीच में पड़े ही नहीं। इन शॉर्ट अगर ये मामला बैठ के ख़त्म नहीं होगा। अच्छा। मैं इन शॉर्ट आपको बता रहा हूँ, आप अफगानिस्तान की तारीख देख लें, ठीक है, अफगानिस्तान ने भी जंग जैसे जीती है ना, इंशाअल्लाह हमास फतह याब होगा। हम दुआ करते हैं, आप भी दुआ करें, और इंशाअल्लाह ताला जब अल्लाह की गैब से मदद आती है ना मेरे भाई, अल्लाह चिड़ियों के हाथों बाज मरवा देता है। ठीक हो गया, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम। आपका नाम? मोहम्मद आजम साहब जी। एक इनसे सवाल कर लूँ, उसके बाद वाइंड अप करेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं, करते क्या आप? मेरा कपड़े का ही काम है। ठीक है, ये भाई अभी कह रहे थे कि भाई आज के दौर में, मतलब इनका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि आज के दौर में भी जंग जो सी है वो जज्बे से लड़ी जाती है और इस तरीके से लड़ी जाती है। मैंने बात की कि भाई आज टेक्नोलॉजी का दौर है, इकॉनमी का दौर है, जब टेक्नोलॉजी नहीं होगी, इकॉनमी नहीं होगी, तो कैसे कोई भी किसी का मुकाबला कर पाएगा। आप इस बात पे क्या कहना चाहेंगे? आप यही कहेंगे जो भाई ने बोला कि जज्बे से और इस तरीके से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये भाई की बात तो बिल्कुल वही है कि जंग जज्बों से जीती जाती है। अच्छा। गज़वाए बदर है, 313 सहाबा हैं और कुफार का लश्कर है। लेकिन सर तब देखें टेक्नोलॉजी नहीं थी ना, मेरा ये भी पॉइंट है, तब इकॉनमी नहीं थी। सर टेक्नोलॉजी का जवाब मैं आपको अभी देता हूँ कि अफगानिस्तान में कौन सी टेक्नोलॉजी थी। ठीक है, उनको तो ये भी नहीं पता था कि रॉकेट लॉन्चर के अंदर रॉकेट कैसे डाल के चलाना है। लेकिन रशिया के अगेंस्ट उन्हें सप्लाई मिलती रही अमेरिका की तरफ से। सर जी वो अगर रशिया के, लेकिन जो नए लोग लड़े हैं, जो नई कौम लड़ी है, वहाँ पे कौन से ट्रेनिंग याफ्ता थे। ठीक है, ठीक है। और इस्लाम का जो है ना, उसको किसी टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं। अल्लाह ये टेक्नोलॉजी किसने डाली है लोगों के ज़हन में? अल्लाह ने डाली है। अच्छा, अल्लाह ने दूसरे लोगों के ज़हन में सर टेक्नोलॉजी डाल दी है, नॉन मुस्लिम के माइंड में। हमारे अगर मुसलमानों की बात करें, हम उस तरीके से अल्लाह ने हमारे ज़हन में क्यों नहीं टेक्नोलॉजी? अल्लाह ने बड़ी डाली है, तुम ये कभी भी ना सोचो अभी भी बगैर टेक्नोलॉजी के जंग नहीं हो रही। अच्छा। अंदर खाते मुसलमान की मदद कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन वो खुल के सामने नहीं आ रहे। ठीक है, इंशाअल्लाह अल्लाह खुल के सामने आए, मतलब मुसलमानों को टेक्नोलॉजी के जरिए भी अल्लाह ताला इंशाअल्लाह जरूर मदद देगा और दे भी रहा है। ठीक हो गया। अच्छा आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पाकिस्तान के? जिस भी पाकिस्तानी से पूछें, जिस भी शहरी से पूछें, इनसे पूछा, इन्होंने भी जज्बात का इजहार किया। आपसे पूछा, मुझे पता है इधर जितने भी लोग खड़े हैं सभी ये कहेंगे कि हम फलस्तीन के साथ हैं, ये चीज़ है। लेकिन हमारा इस टाइम जो इकॉनमी की सिचुएशन है या ओवरऑल जो गवर्नमेंट की स्टेबिलिटी नहीं है, हमारा साथ खड़ा होना ना होना मायने रखता है। जिस तरीके से दूसरी साइड पे अगर बात करें, इसराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, इंडिया ने भी ये अनाउंस किया कि भाई हम जो उनसे मॉरली उनके साथ खड़े हैं, हम जो उनसे उनको सपोर्ट करते हैं। साथ उनके जो खबर के मुताबिक इंडियन हैकर हैं वो फलस्तीन की जो वेबसाइट है वो भी हैक वगैरह करने की ट्राई है, ये कर रहे हैं। बड़े बड़े कंट्री इस तरीके से जो साथ खड़े हैं, हमारा खड़े होने का क्या आप समझते हैं? देखिए जी आपकी बात बिल्कुल सही है। हमारे जो हुक्मरान हैं, आप इनसे ये ना समझें कि ये खड़े नहीं हैं। ठीक है, ये जैसे भी हैं, इनके अंदर ईमान है, ये कलमा गो हैं। हमारी फौज कलमा गो है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, आप भी कलमा गो हैं। आपके अंदर भी वो दुआएं मौजूद हैं कि किस तरह जो है ना, हमने जो है ना दुआएं करनी है। पाकिस्तान जिंदाबाद, नो डाउट। अच्छा क्या कह रहे थे आप? अपनी बात करिएगा कि आज भी जो है ना, लोग भी जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के साथ हैं और क़यामत तक रहेंगे।
सिर्फ क्या है कि हमारे अंदर वो जज्बा ख़त्म हो चुका है। जो जज्बे को उजागर करना है वो क्या है, अल्लाह कुरान के अंदर फरमा रहा है वमा लकुम ला तुकातिलूना फी सबीलिल्लाह, कि अल्लाह के रास्ते में निकलो। ठीक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इज़ा तरक्तुमुल जिहाद फसल्लतल्लाहु अलैकुमुज़ ज़िल्ला, कि तुम पर ज़िल्लत को मुसल्लत कर दूंगा जब तुम अल्लाह के रास्ते में नहीं निकलोगे। तो अगर वो भाई हमारे अल्लाह के रास्ते में निकले हैं तो किसी टेक्नोलॉजी की मुझे परवाह नहीं, बल्कि कोई ऐसी टेक्नोलॉजी उनको नहीं रोक सकती। जंग हमेशा जज्बे से लड़ी जाती है। ठीक है, लेकिन आप ही कह रहे हैं कि जज्बे हमारे में कम हो चुके हैं आज के सारा हमारे में कम है, लेकिन जो मैदानों में उतरे हुए हैं उनके जज्बे तो हैं। अगर उनके जज्बे ना होते तो कश्मीर के हालात दिन ब दिन और बदतर होते जाते। ठीक हो गया। अफगानिस्तान की जंग जो है ना, कौन सी टेक्नोलॉजी से जीती गई है? क्या आप इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालें? कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी उनके पास, लेकिन अल्लाह की मदद थी। वो अल्लाह को मानने वाले थे, तहज्जुद में अल्लाह को मनाते थे। अच्छा, आज अगर पाकिस्तान के नौजवान से, यहाँ पे नौजवान खड़े हैं, ये सब नौजवान हैं, आज अगर इनसे कहा जाए कि भाई फ़लस्तीन चलो, वहाँ पे जाके जो सा उनके साथ मिल के आप जो सा जंग करो, तो क्या यहाँ से नौजवान जाएंगे, जज्बे के तहत जाएंगे, या फिर क्या आप कहेंगे गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए, अपने तौर पे नहीं? सर जी, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कहा जाए तो सबसे पहले आप जाने के लिए तैयार हो। ठीक हो गया। क्या आप जाने के लिए? आप अपना मुझे बताएं, आप क्या नहीं जाना चाहेंगे? मैं कहता हूँ, मैं तो आपके सवाल में ही आपका जवाब मौजूद है। मैं कहता आप क्या इसके अगर गवर्नमेंट कहती है कि मुसलमानों का साथ दो, हम गवर्नमेंट पाकिस्तान की उनके साथ खड़ी होती है। कौन सा मुसलमान ऐसा है, वो माली लिहाज से भी जाएगा, वो जानी लिहाज से भी जाएगा, और वो जज्बे से जाएगा, अल्हम्दुलिल्लाह जाएंगे। अच्छा, आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? फिर उसके बाद मतलब आगे किसी से बात करते हैं, क्या कहेंगे आपके? आज अगर ये जो नौजवान खड़े हैं, या कहीं भी पाकिस्तान के नौजवानों को गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के भाई हमारे पास पैसे तो है नहीं है, हम लोगों को भेज सकते हैं, तो लोग जाएंगे यहाँ से लड़ने के लिए, जाने देने के लिए? बिल्कुल ज़रूर जाएंगे। इन शॉर्ट मैं ये बात करके बात ख़त्म करता हूँ कि आज भी हो इब्राहिम का इमाम पैदा कर सकती है अंदाज़े गुलस्तां पैदा, इंशाअल्लाह। आइए मज़ीद किसी से बात। तो देखा दोस्तों, कैसे पाकिस्तान मुसलमानों की हो रही कुटाई पे कैसे भड़क रहा है और कैसा रिएक्शन दे रहा है। हमास पे जो हमले हो रहे हैं बिल्कुल जायज़ है, उनको ऐसे ही मार के ऐसी आतंकवाद का सफाया करना ज़रूरी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में ज़रूर बताना, कि ऐसे मुसलमानों की कुटाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए जो बेगुनाहों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।